वो आपको सबको आशीषित करेगा। May God bless you all. बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। Let us all be seated in the presence of God with a very prayerful heart. थोड़ा समय परमेश्वर का वचन से हम मगन करने के लिए जा रहे हो। We are going to meditate upon the word of God for some time. हमने सुना यहोवा परमेश्वर अपना चरवाहा है। We heard that the Lord is our shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is our shepherd. अच्छा चरवाहा है। He is a good shepherd. यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय में In John chapter 10, यीशु ने कहा, Jesus said, I am the good shepherd। मैं अच्छा चरवाहा हूँ. बहुत पावरफुल अथॉरिटी स्टेटमेंट था। It is a very powerful and authoritative statement. Without any doubt, Jesus declared that He is that Yehovah, the shepherd. बेशक यीशु मसीह ने ये घोषित किया कि वो अच्छा चरवाहा है. Gospel of John chapter 10 और भजन संगीता 23 हम दोनों साथ में रखे पड़ेगा तो If we compare the Gospel of John chapter 10 and Psalms 23, हम देख सकते ये दोनों हम एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहे और Amen. एक Hallelujah. अच्छा चरवाहा कैसे है। we can see that both these chapters speak about the same thing, about how good our shepherd is. Thank you Jesus। Hallelujah. चुना नियम में In the Old Testament, जहाँ यहोवा शब्द इस्तेमाल किया, wherever the word Jehovah is mentioned, नया नियम में उसी स्क्रिप्चर को जब कोट किया, and when that same scripture has been quoted in the New Testament, उधर लॉर्ड करके शब्द इस्तेमाल किया, प्रभु वहाँ करके पर शब्द इस्तेमाल किया, there the word Lord has been mentioned. और नया नियम में उस जो लॉर्ड हालेलुया यीशु मसीह है। And in the New Testament, the Lord is Jesus Christ. मैंने क्या कहा? What did I say? ओल्ड टेस्टमेंट में कुछ जगहों में यहोवा करके जो शब्द इस्तेमाल किया, In the Old Testament, wherever the word Jehovah has been used, न्यू टेस्टमेंट में उसी स्क्रिप्चर को कोट करके in the New Testament, when that very scripture has been quoted, और बताया उसी व्यक्ति यहोवा यही यीशु है। the same Jehovah which was in the Old Testament has been mentioned as the Lord in the New Testament. ये बात बताएगा तो लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है। When we speak this word, it is very difficult for the people to understand it. ट्रिनिटेरियन कंसेप्ट में, ट्रिनिटी के जो कंसेप्ट क्योंकि में तृतीय जो तत्व ज्ञान है उसमें ऐसे एक सोच अपने अंदर है। there is such a concept as a belief in our mind. जुना नियम का जो पिता परमेश्वर है उसका दूसरा नाम है यहोवा। There is a concept that the Old Testament which has Jehovah has the name in the New Testament. In the Old Testament we can see Father, and some used to think that the name of Father is Yehovah. पुराने नियम में जब पिता करके उस शब्द को देखते थे तो कई लोग ऐसा विश्वास करते थे कि वो पिता का मतलब यहोवा है। लेकिन वो पूर्ण रूप में सही नहीं है। It is not right in the complete क्योंकि sense. बाइबल में ऐसे स्क्रिप्चर्स हमें मिलेगा। Because we can find scriptures in the Bible. Sometime the Father is called Yehovah. कई बार पिता को यहोवा करके पुकारा जाता है। Sometime the Son, हालेलुया, पुत्र को यहोवा बुलाया है। And sometimes the Son is called as Jehovah. Sometime Holy Spirit, even the Holy Spirit is called Yehovah. And even at times the Holy Spirit has been mentioned as Jehovah in the Bible. So triune God में, Godhead में तीन जो एंटिटी होते हैं, तीनों को हम बुला सकते, एक नाम है यहोवा। So all the three entities which are there in the concept of Trinity can be addressed as Jehovah. That is a revealed name of God. वो परमेश्वर का दर्शाया हुआ नाम है। The meaning of that name is, उस नाम का मतलब, I am your Lord, I am your Master. मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। एक छोटा सा उदाहरण में बताएगा। I want to give you a small example. Isaiah chapter 40 में, In Isaiah chapter 40, there is a prophecy about John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में एक भविष्यवाणी है। Hallelujah. हालेलुया। उधर लिखा है यहोवा का रास्ता तैयार करो, राह तैयार करो। And in Isaiah 40 it is written, prepare a highway for John the Baptist. No, for यहोवा। For Jehovah. यहोवा के लिए एक हाईवे, एक चौरस रास्ता तैयारी करो। Prepare a highway for the Lord, Jehovah.
उधर क्या लिखा है? यहोवा लिखा है। It is written Yehovah. लेकिन नया नियम में But in the New उसी Testament, स्क्रिप्चर को जब कोट किया, when that same scripture has been quoted, हालेलुया, Hallelujah. जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कहा, it is written about John the Baptist. उधर लॉर्ड लिखा है। In the New Testament, it is addressed as Lord. तो वो लॉर्ड ना तो प्रभु कौन था? So who was this Lord or God? यशायाह ने बोला वही यहोवा। The same Jehovah which Isaiah mentioned. नया नियम में वो कौन है? Who is that in the New Testament? यीशु है। It is Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तो यहोवा मेरा चरवाहा है करके ओल्ड टेस्टामेंट में जब लिखा है, So when it is written as the Lord is my shepherd in the Old Testament, Jesus said that I am that Yehovah. यीशु मसीह ने कहा मैं वो यहोवा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. अगुवाई करने वाला अच्छा चरवाहा। The good shepherd who guides. Psalms number 23 में we can see a good shepherd. हालेलुया, हम एक अच्छा चरवाहा को देख सकते जो अगुवाई करने वाला चरवाहा है। In Psalms 23 we can see a good shepherd who guides. बहुत प्रार्थना के साथ इस वचन सुन लीजिए। Listen to these words very prayerfully. ऑलरेडी शुक्रवार को मैंने इस वचन को शुरू किया, लेकिन Although I started these words on Friday, प्रभु का आत्मा आज उसमें मुझे ऐसे एक प्रेरणा दे रही, एक पर्टिकुलर शब्द में एम्फसाइज करके कुछ बातों में आपसे बहुत सरल रूप में बता के देने के the लिए। Spirit of God is emphasizing me to explain this word in a very simple way. Psalms 23 से अपना अच्छा चरवाहा के बारे में काफी बातों हम सीख सकते हैं, We can learn many good things about the good shepherd in Psalms 23. लेकिन आज इस फर्स्ट सेशन में God is giving me the guidance to give emphasis on a particular hallelujah point or a particular scripture. लेकिन आज इस पहले सेशन में परमेश्वर की आत्मा मुझे एक चुना हुआ शब्द के ऊपर ध्यान लगाने के लिए प्रेरणा दे रही है। 23 का आयत 4 में क्या लिखा है देखो। What is written in Psalms 23 verse 4? नहीं सॉरी, तीसरा आयत। Third verse. वो मेरे जी ले आता है, धर्मों के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन, हालेलुया। धर्मों का मार्ग में, सही मार्ग में, In the path of righteousness, in the right path, खरे मार्ग में in the right path, मुझे अगुवाई करने वाला परमेश्वर। He's a God who guides me. एक चरवाहा का सबसे प्रधान एक काम है अगुवाई करना। The primary responsibility of a shepherd is to guide. जब आपने सुनेगा हालेलुया यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, When you hear that the Lord is our shepherd, यीशु मेरा चरवाहा है, Jesus is my shepherd, आपको जल्दी दिल के अंदर यही तस्वीर लाना है, मुझे अगुवाई करने वाला, मुझे चलाने वाला परमेश्वर। you must immediately bring this picture in your heart that He is a shepherd who guides me, He is a shepherd who leads me. मुझे मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर। He is a God who guides me the way. मैं कल कहा था परमेश्वर का वचन में परमेश्वर उपयोग किया काफी परमेश्वर का दासों, लीडर्स ऑफ इस्राएल, दे वर शेपर्ड्स, वो लोग चरवाहा लोग था। As I mentioned yesterday that many leaders of Israel who are mentioned in the Old Testament were shepherds. याकूब एक चरवाहा था। Jacob was a shepherd. मैं थोड़ा कल एक्सप्लेन किया, I explained this a bit लेकिन yesterday. याकूब को मैं उधर रुका के कुछ और बातों में आज बोल के आगे बढ़ना चाहता But I want to speak some other things apart from Jacob. हूँ। मोसेस एक चरवाहा था। Moses was a shepherd. डेविड एक अच्छा चरवाहा था। David was a good shepherd. यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा बुलाया है। Jesus has been called as a good shepherd. यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा बुलाया है। Jesus has been called as the good shepherd. यीशु मसीह को अच्छा समरियन, गुड समरियन बुलाया है। Jesus has also been called as the good Samaritan. हर विषय में यीशु अच्छा है। Hallelujah. In every aspect, Christ is good. अपना अच्छा चरवाहा। Our good shepherd. और एक व्यक्ति आके एक बार यीशु को ऐसे बताया, And one person came and spoke to Jesus in this ऐसे way. बुलाया, He called him, गुड टीचर। hey, उत्तम गुरु. सो जीसस इज अ गुड टीचर आल्सो। यीशु मसीह एक उत्तम गुरु भी है. अच्छा चरवाहा है, He is a good shepherd. अच्छा गुरु है। He is a good teacher. हालेलुया। Hallelujah. जब अच्छा गुरु बुलाया यीशु को, When that person called Jesus as a good teacher, यीशु ने एक सवाल उनसे पूछा। Jesus raised a question to him. क्या पूछा मालूम है? What did he ask? Why you are calling me good? हालेलुया। तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? Goodness belongs only to God. क्योंकि उत्तम केवल परमेश्वर का है.
यीशु ने क्यों मैं इसे पूछा मालूम है? Why did Jesus ask in this ये way? जो व्यक्ति आया When this person came, वो एक शास्त्री, एक धर्म का सरदार है, he was a teacher of the law. हालेलुया, एक Hallelujah. नॉलेजेबल पर्सन है, He's a very knowledgeable person. समझदार व्यक्ति है, He's a very understandable person. ऐसे ही कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। He's not somebody who can just randomly utter words. अगर उन्होंने कुछ कहा तो सोच के समझ के बोलने वाला है। If that teacher of the law spoke something, he must have spoken out of some knowledge. अगर वो एक शास्त्री है, If he is a teacher, जरूर उनको उस जो नॉलेज है, उस जो समझ है, definitely the knowledge or the understanding which he has, सिर्फ परमेश्वर का बारे में भला ना तो अच्छा कह सकते हैं। only that knowledge or understanding can help him to say that God is good. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहे? How many of you have been able to understand? यहूदी लोग, यहूदी धर्म का सरदार लोग, यहूदी शास्त्री लोग, they were very particular when they speak. Hallelujah. The Jewish teachers of the law were very particular when they spoke about something. इतना डर के बात करते था। They spoke out of very much fear and reverence. उनको ऐसे मन में एक सोच हमेशा रहते था, They always had this thought in their minds. मैं कभी भी परमेश्वर का नाम को नीच करने का, हल्का करने का कोई भी शब्द उपयोग करेगा नहीं। I will never speak any word which can demean the name or the word of God. Because commandments में जो 10 आज्ञाओं में Because in the 10 Commandments, ऐसे कह के दिया है, तेरा परमेश्वर का नाम तुझे व्यर्थ में मुंह में लेना नहीं। it is written that you must never utter the word of God in vain. इसलिए वो लोग डरते था, That is why they were very afraid. परमेश्वर का नाम मुंह में लेने के लिए डरते था। They were afraid to use the name of God in their lips. और ऐसे एक सिस्टम बन गया, एक रीति बन गया, And it occurred in this such a system. whenever they want to use the name of God, जब भी उन्हें परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करना था, because they were having that fear, क्योंकि उन्हें यह डर था if they use the name of God in vain, कि अगर वो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले तो they will be, there is a chance, they may break the commandment. तो उनके पास ऐसा एक मौका है कि वो ज्ञान को तोड़े, उसका उल्लंघन करे। So they were very fearful and cautious when they used the name of God. इसलिए वो जब भी परमेश्वर का नाम का इस्तेमाल करते थे तो बहुत ही भयभीत थे। So to avoid breaking the commandment, तो आज्ञा का उल्लंघन करना अगर वो नहीं चाहते थे तो instead of using the name of God, they used to say heaven. इसलिए परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करने के बजाय वे स्वर्ग के नाम को इस्तेमाल If करते they थे। want to say, God, hear my prayer, अगर वो इस प्रकार कहना चाहते थे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन, hallelujah, they used to say, तो वो इस तरह कहते थे, heaven, listen me. स्वर्ग तू मेरी दुआ सुन। If they want to call God, come down, they used to say, heaven, come down. अगर वो परमेश्वर को इस पृथ्वी पर बुलाना चाहते थे तो वो इस प्रकार से प्रार्थना करते थे कि स्वर्ग तू नीचे आ। Why they were fearful? क्यों वो भयभीत थे? Because they were fear, they thought that there may be a chance to break the commandment. क्योंकि उनके मन में ये डर था कि वो शायद आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Protect themselves from breaking the commandment. अपने आप को आज्ञा का उल्लंघन करने से बचाने के लिए They avoided even using the shabd, the word God in their mouth. उन्होंने अपने होठों से परमेश्वर करके शब्द को पुकारने से भी अपने आप को वंचित किया। When the scribes or the shastris, they copy Bible, जब कभी भी वो शास्त्रियों ने बाइबल का नकल किया, कॉपी करता था। उस जमाने में प्रिंटिंग मशीन नहीं है। उस in that age there were no printing machines. सो बाइबल कैसे करता था? So how did they used to print the Bible? स्क्राइब्स और शास्त्रियों क्या करता था? वचन को कॉपी करके The दूसरा scribes पुस्तक used to बनाते थे। rephrase and rewrite those scriptures. बहुत सोच के समझ के करेगा, They used to rewrite it very carefully and बहुत thoughtfully. ध्यान लगा के करेगा। They used to rewrite it very thoughtfully. क्या करता था मालूम है? What did they do? When they write the hallelujah name of God, जब वो परमेश्वर के नाम को लिखते there थे, was two system or culture. वहां पर दो प्रकार के नियम या तो The दो प्रकार के scribes used to wash their hallelujah writing instrument. वो जो शास्त्री थे वे अपने कलाम को बार बार धोते थे। परमेश्वर का जो खुदा ना तो गॉड करके शब्द लिखने से पहले उसका पेन समझ लीजिए, उसका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट को वो क्या करता था मालूम है? धोते था। Whenever that scribe used to write the name Jehovah or the name God, he used to wash the instrument through which he used to write. Because they were having that fear.
क्योंकि उनके मन में वो भय था। बाकी सामान्य शब्दों लिखा उसी हालेलुया इंस्ट्रूमेंट से परमेश्वर का नाम में कैसे लिख सकते हैं? Hallelujah. The very instrument which they used to write ordinary words couldn't be used to write the word which और had अगर God. गॉड शब्द लिखा, And if they wrote the word God, they were having the fear. उनके अंदर ये भय था। Now this pen it became holy. अब ये कलाम पवित्र हो गया। Now we cannot write ordinary things using this pen. अब मैं सामान्य बातों को इस कलाम से नहीं लिख सकता। There were two systems. वहां पर दो प्रकार के They रीति used थे। to wash the pen again and then only they will write the ordinary things. वो सामान्य बातों को कलाम धोकर ही वापस लिखते थे। Or the second system was और दूसरा नियम इस प्रकार से था, they will not use this instrument again. वो फिर से उस वाजंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। Some scribes they used to break that thing because they do not want to use it again to write ordinary things. कुछ शास्त्रियों अपने कलाम को तोड़ देते थे क्योंकि वो उसी कलाम से जिस कलाम से उन्होंने परमेश्वर के बारे में लिखा वो सामान्य बातों को नहीं लिख सकते थे। केवल परमेश्वर के नाम को लिखने से They thought that this pen or that writing instrument got consecrated for God. वो ये समझते थे कि इस कलाम का शुद्धिकरण हो गया है। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you have been able to understand this? मैं क्यों मैं बैकग्राउंड बोल रहा हूँ? Why am I giving you this background? कुछ इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए. To make you understand an Now important thing. a scribe or a shastri came to Jesus. अब एक शास्त्री यीशु मसीह के पास Who आता know है। all these customs and manners. ये सारे रीति और रिवाज Who know that only God is good. जो जानता है ये सारे रीति रिवाज और जो जानता है कि परमेश्वर Now भला the है। same fellow calling Jesus good teacher. अब वही शास्त्री यीशु मसीह को कहता है हे उत्तम गुरु। The one who knows that जो ये जानता है that good can be added with only God's name. हालेलुया। वो शास्त्री ये जानता है कि उत्तम शब्द जो है वो केवल परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। Now Jesus is asking that question. अब यीशु मसीह ये सवाल पूछता है, Why you are calling me good guru? तुम मुझे उत्तम गुरु क्यों कहलाते हो? You know what is the meaning of that question? आप जानते हो उस Hey, सवाल का अर्थ क्या है? are you acknowledging me as God? क्या तुम मुझे परमेश्वर करके ये पुकारते हो? That is the meaning of that question. ये उस सवाल का मतलब है। Are you accepting me as God? क्या तुम मुझे परमेश्वर की तरह स्वीकार करते हो? You know that goodness belongs to God तुम only. जानते हो कि भलाई केवल परमेश्वर का है, No one else is good. कोई और भला नहीं So है। are you accepting that I am God? तो क्या तुम ये कबूल करते हो कि मैं परमेश्वर हूँ? Hallelujah. हालेलुया। We must learn study Bible from the context. हम हमेशा मतलब के साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बैकग्राउंड क्या है जान के परमेश्वर का वचन सीखना है। परमेश्वर के वचन को हमेशा उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार सीखना है। उसका गहराई बढ़ जाएगा। The depth of the word of God will increase. Meaning बढ़ जाएगा। The meaning of the word of God will So when increase. Jesus said, I am the good shepherd, इसलिए यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं he अच्छा चरवाहा हूँ, was declaring, वो ये घोषणा कर रहा I था, am that Jehovah mentioned in Psalms हालेलुया, 23. मैं वो यहोवा परमेश्वर हूँ जो भजन संगीता 23 में लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया, I am that Jehovah. मैं वो परमेश्वर हूँ। Hallelujah. आमीन। अब समझ लीजिए You can understand it. इस यहोवा का विशेषता क्या है। What is the speciality of this Lord? मुझे सीधे धर्म के मार्ग में अगुवाई करने वाला यहोवा। He guides me in the path of righteousness. आप में से कितना लोग आज सुबह प्रार्थना करेगा? How many of us can pray this morning? मुझे अगुवाई चाहिए। I want guidance. Hallelujah. वचन में क्या लिखा है मालूम है? What is written in the word? जब यीशु ने देखा, When Jesus saw, हालेलुया, hallelujah, लोगों को देखा, when he saw the people, तितर फितर हुआ लोगों को, the scattered people, परेशान लोगों को, the troubled people, कंफ्यूज्ड लोगों को, the confused people, बीमारी से संकट से जूझ रहे लोगों the को, people who have been struggling with sickness and problems. Bible says that परमेश्वर का वचन कहता है, Jesus felt compassion on that people. यीशु मसीह को उन लोगों पर दया आई। He found them, hallelujah. उन्होंने उन्हें खोजा। ऐसे ऐसे shepherdless है ना, चरवाहा नहीं है, वैसे भेड़ों जैसे तितर फितर होके The देखा। word of God says that they were like sheep without any shepherd. चरवाहा नहीं है तो क्या होने वाला है? What would happen if there is no shepherd? अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है। There will be nobody to guide the sheep. हर भेड़ अपना मर्जी में चलेगा। Every sheep will walk according to its own way. ये भेड़ों का एक विशेषता है। There is a speciality about sheep. भेड़ों को चरवाहा हमेशा आगे आगे जाके चलाना पड़ता है। Hallelujah. The shepherd always has to lead the sheep from the front. बाकी काफी जो पशुओं में
or rest all of the other जो animals घर में हम डोमेस्टिकेट करते हैं पालतू जानवरों में, which we keep them as pets, as domestic animals in our houses. उसको हम पीछे से चला सकते हैं। We can lead them from behind. जो बैलगाड़ी को कहाँ से चलाते हैं? From where do we lead the bull? हैं? पीछे से ना। From behind. घोड़ा गाड़ी को भी ऐसे चला सकते हैं। We can even ride a horse from behind. आपका घर का कुत्ता आपका आगे भागेगा, The dog of your house can run ahead of you, लेकिन आपका bird कभी भी आगे भागेगा। but the sheep of your house will never run ahead of you. If a shepherd tries to, hallelujah, lead the sheep from behind, अगर वो चरवाहा अपने भेड़ को पीछे से अगुवाई करने का कोशिश करेगा तो 50 भेड़ है तो if there is 50 sheep, 50 रास्ता में चला जाएगा। then all the 50 sheep will go in 50 different ways. That is a problem with this sheep. यही बकरियों के साथ या तो भेड़ों के साथ की इसलिए समस्या है, always चरवाहों को आगे आगे चलना पड़ते हैं। because the shepherd always has to lead from the front. sheep चरवाह को फॉलो करना चाहते हैं। The sheep wants to follow the shepherd. एक अच्छा खूबसूरत सिंबोलिज्म है मेरा प्यारो। It is a very beautiful symbolism. परमेश्वर को जब अपने चरवाहा बुलाया, When we call the Lord as our इसमें से shepherd, काफी बातों हमें सीखने के लिए है। there are a lot of things that we can learn from this. From the Old Testament पुराने itself, नियम में से ही परमेश्वर पीछे पीछे गया नहीं। the Lord did not lead from behind, परमेश्वर he was always in front of them, leading them. but the Lord was always in front, हमेशा आगे से अगुवाई का। You know, in Bible it is written, परमेश्वर के वचन में लिखा है, Deuteronomy chapter 9, व्यवस्था विवरण उसका I will 9 go ahead of you. वो तुम्हारे आगे, मैं And तुम्हारे I आगे will जाऊंगा, destroy, I will remove all obstacles, all the enemies, hallelujah, from your way. और मैं तुम्हारे मार्ग में से सारे दुश्मनों को, सारे प्रकार के बाधाओं को हटा दूंगा। I will clear a path for you. मैं एक रास्ता वहां पर साफ कर दूंगा। चरवाहा आगे जाके The shepherd always leads from the front. रास्ता बनाएगा, The shepherd will create the way from the front. मार्ग को सीधा करेगा, He will make the ways straight. मार्ग को अच्छा He बनाएगा। will make the ways good. चरवाहा ने जो सीधा किया मार्ग से हमें उसका पीछा करना। Hallelujah. We must follow the shepherd on the way which he has created for us. अगर Deuteronomy 9 में ऐसे कहा तो अगर व्यवस्था विवरण 9 में, if it is written in that was Deuteronomy the 9, beginning of the wilderness journey. वो उस मरुभूमि के सफर की शुरुआत थी। लेकिन मरुभूमि यात्रा का अंत में क्या हो गया मालूम है? But what happened at the end of the wilderness journey? मूसा को कहा, God said to Moses, Hallelujah, I am going to cross Jordan ahead of you. मैं Hallelujah. यर्दन नदी को तुमसे आगे मैं तुम्हारे अभी लिए तक पार मैं करूंगा। तेरे आगे आगे चल के Until now I was walking ahead of you. फिलिस्तियों का, फिरिसियों का, हित्तियों का सारे शक्ति को नाश करके अगर तुझे आगे रास्ता दिखाया तो Until now, if I have walked ahead of you after defeating all the plans of the Philistines and the Hittites, अभी मैं आपसे पहले यॉर्दान को पार करेगा। now I am going to cross the river Jordan ahead of you. हालेलुया, Hallelujah. आप उस पार पहुंचने से पहले Before you cross to the other shore, प्रभु उधर पहुंचेगा, God will reach to the other shore. आपसे Hallelujah. पहले पहुंचेगा। Before you reach, अपना यीशु का विशेषता, what is the speciality of our Christ? हालेलुया, वो हम पहुंचने के बाद में आने वाला नहीं It's है। not a Christ to reach us after we have reached. हम पहुंचने से पहले अपने आगे आगे Hallelujah. Hallelujah. चलेंगे। Before we reach to the other shore, He is a God who reaches before us. प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा हो, The Spirit of God is saying to you, He will lead you, guide you. Hallelujah. वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको चलाएगा। You will never be the sheep without shepherd. आप कभी भी ऐसे कोई भेड़ नहीं होंगे जो God बिना will not चरवाहे के allow हो। you to be scattered. परमेश्वर आपको तितर बितर होने का Hallelujah! हालेलुया। बोलो ना, मुझे अगुवाई चाहिए। Can you say, Lord, I want guidance? शायद अगले कदम कहाँ रखना है आपको जानता नहीं। Maybe you don't know where you need to put the next step forward. You may be standing in the crossroad of your life. आप शायद अपने जीवन के चौराहे पर खड़े होंगे। You may not be knowing what to decide. आप शायद ये नहीं तय कर पा रहे हो कि मैं Just क्या निर्णय लूं। watch your shepherd आज आप केवल अपने उस चरवाहे की ओर and देखें follow his footsteps. और उसके कदमों के अनुसार चलें। You will never fail in your life. आप अपने जीवन में कभी भी पराजित नहीं होंगे। Do not take your eyes from your shepherd. अपने चरवाहे से अपनी नजरों को ना हटाएं। हेलो, Hallelujah. आपका चरवाहा से आपका आंखों को, नजरों को मत हटाओ। Do not take off your eyes from your shepherd. Keep your eyes on Jesus. यीशु पर अपनी आंखों को लगाए That's रखें। why Bible says. इसलिए परमेश्वर का That's why वचन book of कहता है। Hebrews says. इसलिए इब्रानियों का पुस्तक Hallelujah. हालेलुया। उन पर दृष्टि लगाकर To those who look upon him, उनके ओर ताकते रहो gaze upon him और उनको पीछा करते रहो। and follow him. Follow him.
उसका पीछा करें। अगर आपने उन पर दृष्टि लगाया, If you have set your eyes upon him, आप कभी भी लज्जित न होने। you will never be put to shame. हालेलुया, Hallelujah. साम्स नंबर 34 में लिखा है, भजन संगीता 34 में लिखा है, जो भी उन पर दृष्टि लगाया, all those who have put their eyes upon him, उनका मुंह काला होने के लिए नहीं दिया। their faces are never covered with shame. देखो वो कितना भाला, हर कष्टों से छुड़ाएगा। देखो वो कितना भाला, हर कष्टों से छुड़ाएगा। जो भी देखा जो दी भाया, यीशु जगत की ज्योति। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु तू कितना धन्य है, यीशु तू कितना धन्य है, यीशु तू कितना, हालेलुया, यीशु कितना धन्य है। Our Jesus is so यीशु blessed. कितना भला है। Our Jesus is so सब good. लोग कहो ना, यीशु अच्छा है। Can everybody say Jesus is good? यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है। Jesus is my good मैं shepherd. कंफ्यूजन में नहीं जिएगा। I will not lead my life in मेरा confusion. जीवन का कोई भी परिस्थिति हो, No matter whatever situations or उसमें circumstances, से मुझे छुड़ाने के लिए to deliver me out of those situations, मेरे साथ में एक चरवाहा है। there is a shepherd who is with me. मुझे कोई भी खड़ी ना होने वाला। I shall lack no good thing. हालेलुया, मेरा चरवाहा, मेरा गडरिया मेरा साथ में है। As long as my shepherd is with me, मुझे कोई खड़ी होने वाला। I will lack nothing. हालेलुया, वो मुझे Hallelujah. अगुवाई करेगा। Because he will guide me. घोर अंधकार का तराई में भी Even though I walk through the valley of the shadow वो of मेरे death, संग में रहने वाला। he will be with me. मेरा मन के अंदर ठंडापन लाने वाला चरवाहा। He is a God who brings peace and comfort in my mind. मुझे अगुवाई करने वाला चरवाहा। He is a shepherd who guides me. मुझे चंगाई करने वाला चरवाहा। He is a shepherd who heals मेरा me. सिर को उसका तेल से Hallelujah. अभिषेक करने वाला चरवाहा। He is a shepherd who anoints my head with oil. हालेलुया। Hallelujah. It used to say in that way, इस प्रकार से कहा जाता है, when the shepherd bring his sheep to the sheep and back, उसका जो गौशाला में, उसका जो भेड़शाला में वापस लाएगा। जब वो चरवाहा अपने भेड़ों को अपने भेड़शाला में वापस लेकर आता है। ये चरवाहों को जान दे, Do you know what these shepherds? बाघर जंगली जगह में बहुत घूम के आया है। They roam around a lot of dangerous places, wild अलग-अलग places. चीज खाया है। They have eaten different things. हालेलुया। Hallelujah. शरीर में कीड़ाणुओं पकड़ा होगा, They might have been rotten or bitten with insects in their bodies. तो क्या करते मालूम है? So what do they do? हालेलुया, ऑयल से अभिषेक करेगा। Hallelujah. They anoint themselves with oil. ऑयल लगाएगा। They will apply oil. आज सुबह कहना चाहता हूँ, This morning I want to say, हालेलुया, Hallelujah. Jesus is your shepherd, यीशु मसीह आपका चरवाहा जो है, आपको ऑयल से अभिषेक करने वाला। who will anoint you with oil. उस ऑयल हीलिंग ऑयल है। वो तेल चंगा करने वाला तेल है। हालेलुया। Hallelujah. आज सुबह कहो, This morning can you say, प्रभु जी उस तेल से मुझे भी अभिषेक करो। Lord, anoint me with that very oil. जीसस इज योर हीलर, यीशु मसीह आपका चंगा करने वाला है। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, He is a God who guides us. आगे आगे चलने वाला He परमेश्वर, is a God who marches ahead of us. रुकावटों को हटाने वाला परमेश्वर। He is a God who removes obstacles from our आप path. पहुंचने से पहले Before you reach, आगे आगे पहुंचने वाला परमेश्वर। He is a God who reaches ahead of you. पुनरुत्थित हो गया, यीशु ने कहा, The resurrected Christ said, हालेलुया। Hallelujah. स्वर्गदूतों माँ के उस स्त्रियों से क्या कहा? What did the angels come and say to the woman? जाके यीशु का भाइयों से कहो, Go and tell this to the brothers of Jesus. वो आपका आगे गलीला में, हालेलुया, Hallelujah. He गया has है। reached ahead of you in Galilee. आप पहुंचने से पहले Before you have reached, he will be there in Galilee। वो गलील में होगा. आपके लिए उधर हाजिर है वो। He will be present for you You there. will meet him there। आप उसे वहां पर मिलोगे. हालेलुया, Hallelujah. आपका आगे आगे जाने वाला He is परमेश्वर। a God who marches ahead of you. अब बोलिए ना, Can you say, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मैं परमेश्वर. कॉलेज में पहुंचने से पहले
Before I reach to my college, एग्जाम हॉल में पहुंचने से, before I reach to my exam hall, ऑफिस में पहुंचने before से, I reach to my office, मेरा आगे यीशु चलने वाला, Christ marches ahead of me. मेरा मिशन स्टेशन में मैं पहुंचने से पहले, Before I reach to my mission station, मैं स्टेज में पहुंचने से, before I reach to the stage, मेरा आगे आगे यीशु चलने वाला, God, Christ walks ahead of me. अगुवाई करने वाला परमेश्वर, A God who guides us. हालेलुया, Hallelujah. you will never be confused, आप कभी भी confused नहीं you will होंगे. never be walking according to your own will, अपने स्वयं के इच्छा के अनुसार कभी नहीं चलोगे. just keep your eyes on Jesus केवल अपनी आंखों को यीशु पर लगाए रखो and follow your shepherd. और अपने चरवाहे का पीछा करो. हालेलुया। हालेलुया. आज सुबह में परमेश्वर का वचन खोल के पढ़ रहा था, तभी एक वचन मेरा नजर में ऐसे आ गया. This morning when I was reading the word of God, a word occurred to me. That is Genesis chapter 32 वो verse 1. उत्पत्ति 32 अध्याय है. Verse 1. उसका पहला वचन. हालेलुया। Hallelujah. क्या लिखा है उधर? What is written there? हमल खमाना रगदल। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया। मार्ग लिया। Jacob also went on his way. इस आयत का विशेषता क्या है? What is the speciality of this chapter? इसका पहले का आयतों में In the previous chapters, कुछ बातों बताया है. some things have been mentioned. लाबान was following him. लाबान याकूब का पीछा कर रहा था. लाबान उनको नष्ट करने के लिए आया था. And Laban came and followed Jacob to destroy him. लाबान याकूब को शायद मार डालने का उतना गुस्सा से आया था. Probably Laban followed Jacob with such an anger to kill him. याकूब का हालात देख लीजिए. Can you imagine the situation of चारों Jacob? तरफ डर है. Fear has surrounded him. पापा का घर से डर से भागा. He ran from his father's house out of अभी fear. ससुराल मार डालने के लिए पीछे है. Now his father-in-law is after him to kill him. उस तरफ जाएगा तो If he goes there, भाई मार डालेगा. his brother will kill him. हल पीछे जाएगा तो If he goes back, ससुराल मार डालेगा. his father-in-law will kill him. बीच में फंसा है He बेचारा. is now stuck in the middle. सही है ना? Is it right? याकूब को पता मिला, देखो लाबान पीछा कर रहे. And Jacob got to know that Laban is following him. लाबान आ रहे करके याकूब को जानने से पहले Before Jacob could know that Laban is coming, परमेश्वर ने लाबान का तंबू में उतरा. God arrived in the tent of Laban. हालेलुया. Hallelujah. और लाबान से कहा, And he spoke to Laban, उसको छूना नहीं, do not touch Jacob. मेरा बंदा है. He is my child. अगर आपका चरवाहा आपका आगे आगे चलते If तो your shepherd is marching ahead of you, आपका आगे से भी कोई अटैक नहीं कर पाएगा. nobody can attack you from the front. आपका पीछे से भी कोई अटैक नहीं And कर nobody can attack you from the back. पीछे से शत्रु आएगा. If the enemy comes from the back, वचन में लिखा है, it is written in the word, बादल का खंबा, the pillar of cloud अग्नि का स्तंभ and the cloud of fire. आगे से पीछे चला गया. It went from forward to behind. हालेलुया. क्यों? Hallelujah. Why? पीछे क्यों चला Why गया? did it go back? क्योंकि पीछे से फरो आ रहे. Because Pharaoh was coming from behind. हालेलुया. Hallelujah. पीछे चला गया. And the cloud went back उसको रोकने के लिए. to stop Pharaoh. मैं ऐसे कहना चाहता I want to say, हूं, परमेश्वर को जानते God knows किस मार्ग से आपका विरुद्ध में शत्रु हमला कर रहे. from which way your enemy is coming to attack you. परमेश्वर को जानते God knows which is your weakest frontier. आपका सबसे कमजोर क्षेत्र कौन सा है. Which is your weakest area in your life. आपके जीवन का सबसे कमजोर क्षेत्र कौन सा है. Some frontiers may be so weak. कुछ क्षेत्र बहुत कमजोर हो सकते हैं. God will send his angel to guard that area of your life. परमेश्वर अपने दूतों को उन क्षेत्रों के ऊपर सुरक्षा करने I के am लिए talking भेजेगा. about your spiritual मैं life. आपके आत्मिक क्षेत्रों की बात कर रहा हूं. Hallelujah. Hallelujah. हम सबके जीवन में कुछ इलाका कमजोर होगा. In all of our lives there might be some areas which are weak, उस जगह से शत्रु आपको अटैक करेगा. and the devil will try to attack from that area. शत्रु को जानते कौन सा इलाका में आप कमजोर है. The devil knows which area is your weakest area. आपसे अधिक आपका शत्रु को जानते आपका वीकनेस क्या है. The devil knows more about your weakness than you do, उसी एरिया को टारगेट करेगा. and he will attack that very area. Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थना करो. Pray. प्रभु ने क्या करेगा. What will God do? आपका चरवाहा ने क्या करेगा. What will your shepherd do? आपके लिए उतर आएगा. He will arrive for you. लाबान उसको छूना नहीं. Laban, do not touch Jacob. अभी लाबान आ गया. Now Laban came. साथ में खाया पिया. He ate and drank. They entered into a treaty, a covenant. एक Hallelujah. सौदा के साथ एक वाचा में वो आ गए. वो लोग ये लाबान ने कहा, Laban said, हम कुछ
कानून रखेगा, एक बाउंड्री रखेगा। We will set a boundary. ये बाउंड्री क्रॉस करके Crossing this boundary, कभी भी आपको विरोध करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा नहीं। I will never come to harm or destroy you crossing this boundary. हालेलुया। Hallelujah. कभी भी इस बाउंड्री क्रॉस करके मैं आपको नुकसान पहुंचने के लिए आएगा। I will never cross this boundary to harm or destroy you. वो हिस्टोरिक जगह बन गया। वो एक ऐतिहासिक जगह बना। याकूब ने क्या किया? What did Jacob do? याकूब ने एक पिलर उधर लगाया। Jacob placed or built a pillar there. याकूब हमेशा पिलर लगाने वाला व्यक्ति था। Jacob was always a person who used to build बदल pillars. में भी उन्होंने एक पिलर लगाया था। Even in Bethel, he placed a pillar. आपका जीवन में भी कुछ जगह में आपको एक पिलर लगाना चाहिए। In your life also, you must place some pillars. हम अंग्रेजी में माइलस्टोन्स कहते हैं ना। In English, we say this as milestones. हाल आपका जीवन में कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। In your life also, there are This is certain another milestones. milestone of Jacob's life। ये याकूब के जीवन का एक और milestone था. अपना भाषा में याकूब एक निशाना लगा इधर। In our language, we can say that Jacob कोई placed a मिटा mark, नहीं सकते एक निशाना। a mark which nobody can wipe. एक पिलर लगाया। He placed a pillar. और क्या कहा मालूम है? And what did he do? हालेलुया। Hallelujah. 31 का 31 से पढ़ेगा तो If we read Genesis 31 verse 31 onwards, लाबान याकूब से कहा, Laban said to Jacob, अपने बीच में in our midst, हालेलुया hallelujah, एक खंबा लगाया है। we have placed a pillar. इस खंबा को क्रॉस करके मैं तेरे पास हानि के लिए नहीं आएगा। I will not cross this pillar and come to harm you. ऐसे तुम भी मेरा विरोध करने के लिए इस जो खंबा क्रॉस करके आना नहीं है। So just in this manner, you must also not cross this boundary and come here. और परमेश्वर का नाम लेके वाचा बांधा। And he used the name of God to create a covenant. हिस्टोरिकली इस जगह और ऐतिहासिक रूप से ये जगह बाद जो में है, ऐसे नाम मिला उस जगह को, this place got a name, मिस्पा। Mizpah. मिस्पा Mizpah. मिस्पा का मतलब क्या है? What is the meaning of Mizpah? മലയാളത്തിൽ കാവൽ മാട് എന്ന് പറയും, വാച്ച് ടവർ। ऐसे कह सकते वाच टावर, वाच टावर। वो एक जो चौकी करने वाला कोई एक टावर हो. ऐसे एक विश्वास था यहूदी लोगों का। It was this belief of the Jews. मिस्पा में जहां में एक खंबा लगाया, Where there was a pillar in Mizpah, याकूब ने खंबा लगाया। Jacob placed a pillar. The angel of God is standing there। परमेश्वर का दूत वहां पर खड़ा है. That is a spot where they took the covenant। वो जगह है जहां पर उन्होंने वाचा बांधा. That was the covenant। वो वाचा था. No enemy will cross। Hallelujah. Hallelujah। This pillar, कोई भी शत्रु ये खंबे को पार करके नहीं that was आएगा. a covenant in between वो उनके बीच का वाचा Jacob or Israel याकूब या तो इजराइल and the Gentile people। और वो अन्य जाति लोगों के बीच का वाचा That था. was a line of suppression। वो एक भीति का एक लाइन था. That was a line of control। वो एक नियंत्रण का एक लाइन And था. that was the faith of the Israelites। और वो इजरायलियों का They विश्वास know था. that the angel of God is standing there वो to जानते guard हैं, them। वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का To दूत वहां keep पर खड़ा the रहकर उनकी covenant सुरक्षा with करता them। है, क्योंकि वो वाचा को बनाए रखना चाहता है. हेलो Hallelujah. इसलिए कभी कभी क्या ना कोई भी शत्रु इनके ऊपर हमला करते था, So whenever an enemy used to attack them, यहूदी लोग सीधा कहां पहुंचते था मालूम है? where did the Jews used to reach? मिस्पा में पहुंचते। They used to gather at शमूएल Mizpah. लोगों को मिस्पा में बुलाया। क्यों मिस्पा में बुलाया? And Samuel called people in Mizpah. हेलो शमूएल क्यों मिस्पा में बुलाया? Why did Samuel call the people of क्योंकि Israel in शमूएल को जानते Mizpah? हैं। Because he knew उधर एक खंबा है, there is a pillar, उधर एक कवनेंट है। there is a covenant. क्या कवनेंट है? What is the covenant? हानि के लिए कोई शत्रु इस खंबा को क्रॉस करके अंदर आएगा नहीं। Hallelujah. No enemy will ever cross this covenant or this pillar to harm The us. angel of God is standing there। परमेश्वर का दूत वहां पर खड़ा है. Hallelujah। Hallelujah. Who is that angel of God? कौन है वो परमेश्वर का He दूत? is our shepherd। वो हमारा चरवाहा है. Jesus is standing there। यीशु मसीह वहां पर खड़ा Not है. an ordinary angel। कोई सामान्य दूत नहीं. Who was the angel walking with Israel? कौन था वो दूत जो इस्राएल के साथ चल Who रहा was था? that angel walking ahead of Israel? कौन था वो दूत जो इस्राएल के आगे That चल was रहा none था? other than Jesus। वो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं. Hallelujah। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। कौन खड़ा है Thank you, आपके Father. लिए? Who is standing for us? If you have any potential, attacks against you, अगर आपके विरुद्ध में ऐसा कोई भी आने वाला हमला हो, if you feel that
devil is conspiring against you, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शत्रु आपके खिलाफ में कोई षड्यंत्र रच रहा है, come to Mizpah. मिस्पा में आए। Hallelujah. Hallelujah. That Jesus is standing for you. जहां पर यीशु मसीह आपके लिए He खड़ा will है। allow any demonic power to cross the boundary Hallelujah. and attack you. वो उस बाउंड्री को पार करके आने के लिए कोई भी शत्रु को अनुमति नहीं देगा। Child of God. परमेश्वर के बच्चे, As long as your shepherd is standing there. जब तक आपका चरवाहा वहां पर खड़ा है, If the shepherd's watchtower is there, अगर वो चरवाहे का चौकी करने वाला, no harm can cross that place and hallelujah attack you. अगर वो चरवाहे का चौकी करने वाला वो टावर वहां पर खड़ा है, तो कोई भी आप शत्रु वहां पर आकर धन्यवाद हानि नहीं कर दीजिए। सकता। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। शमूएल हमेशा मिस्पा में बुलाता था। Samuel always used to gather the people of Israel at Mizpah because he knew एक eternal covenant उधर है। there is an eternal covenant at Mizpah. दूत खड़ा है उधर। There is an angel who is standing there. We have that revelation. हमारे पास वो प्रकाशन है। Angel is Jesus himself. वो स्वर्गदूत यीशु मसीह स्वयं है। आपको जानते हैं? Do you know? एक बार शमूएल ने भी एक खंबा लगाया। Once Samuel also built a pillar. और उस खंबा को क्या नाम दिया? And what was that pillar called? Ebenezer. Ebenezer. क्या नाम दिया? Ebenezer. पहले याकूब ने नाम दिया कुछ अलग है। The name which Jacob gave was अभी something else. इस खंबा का नाम कुछ अलग बन And गया। now the name of this pillar is something else. हालेलुया। Hallelujah. एजरा सहादुआ पर याकूब ने गिलगल रखा, गिलियाद रखा, गालेद। गिलियाद। आगे पढ़ लीजिए। लाबान ने कहा, हे ढेर, आज से मेरे और मेरे बीच साक्षी रहेगा। हाँ। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया और मिस्पा भी। मिस्पा भी ब्रैकेट में कुछ लिखा है? नहीं, मिस्पा भी। ओके, मलयालम में ब्रैकेट में लिखा है? हैं? क्या लिखा है? Mizpah means watchtower. वॉच टावर, कावल माडम। हालेलुया। वॉच टावर। हालेलुया। Mizpah का मतलब है चौकी ओ। करने वाला एक टावर। आपको जानते हैं? Do you know? याकूब जहां खंबा लगाया, The pillar which Jacob खंबा built. को याकूब गालेद ना तो मिस्पा नाम दिया। Jacob named that pillar as Galid or Mizpah. हालेलुया। Hallelujah. वॉच टावर। चौकी करने वाला The टावर। angel of God is standing there to watch and protect Hallelujah. me. वो परमेश्वर का दूत वहां पर खड़ा है क्योंकि वो आपके और मेरे No ऊपर चौकी power करता है। can cross that watch कोई tower. भी सामर्थ वो वॉच टावर का सामना करके हमारे घर नहीं आ सकता है। हालेलुया। मैं वापस कहना चाहता I हूं, want to repeat. shepherd सिर्फ आपका आगे नहीं है। वो चरवाहा केवल आपके आगे नहीं। Sometimes the shepherd may change his position if there is a potential attack from behind. अगर आपके ऊपर कोई ऐसा हमला होता है तो वो चरवाहा अपने जगह को बदलकर आगे से पीछे भी जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। शामना Hallelujah. रगदल कड़गड़ शांतों ने अगुवाई करने वाला। The shepherd who guides. Psalms number 23 का 3 में कहा, भजन संगीता 23 की 3 में लिखा है, वो तुझे अगुवाई करेगा, He will guide you. आगे आगे चलेगा। He will march ahead of you. But if you are walking through the valley of death, लेकिन अगर आप उस मौत की तराई से गुजरते हैं if you are तो, walking through the valley of death, अगर आप मौत की तराई से गुजरते हैं तो, वो आगे चला जाएगा नहीं। He will not leave you and go ahead. He know your situation. वो आपके परिस्थिति को He जानता will है। come close to you. वो आपके करीब आएगा। Now he is standing maybe behind you अब हो सकता है वो आपके पीछे and खड़ा हो holding you from your bike. और आपको पीछे से पकड़ा Oh, हो। hallelujah! Hallelujah! Can you imagine that? क्या आप इसे कल्पना कर Now सकते you are हैं? not looking up to your shepherd and walking, following him. अभी आप अपने चरवाहे को अपने आगे नहीं देखते हैं। Now someone is standing behind you, अब आपके पीछे कोई खड़ा है holding you from the bike, जिसने आपको पीछे से पकड़ा हुआ carrying है you forward. और आपको आगे की ओर मार्गदर्शन Moving करता है along with you. और आपके साथ साथ चलता है। He's your shepherd. वो आपका चरवाहा है। He will change his position. वो अपने जगह को बदल सकता है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। उसी जगह को शमूएल ने क्या नाम दिया? What did Samuel give the name of that place? एबेनेजर। Ebenezer. एबेनेजर शब्द का मतलब क्या है? What is the meaning of the word Ebenezer? You all know that? Hallelujah. This far, इस अभी तक अब तक परमेश्वर अपने लिए हालेलुया है। इस समय तक अभी तक परमेश्वर अपना सहायता मदद किया, सहायता की। हालेलुया। अब तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। एबेनेजर का मतलब क्या है? What does Ebenezer mean? आज तक, अब तक इस मिस्पा में Hallelujah. In this Mizpah, जितने बार आया, every time that we came, कभी भी हम फेल हुआ नहीं। never were we ever अब failed. तक, अब तक Hallelujah. Until now. हालेलुया, इस मिस्पा हमें धोखा दिया नहीं। Thus far, Mizpah has never betrayed us. अभी तक Thus
far. इस मिस्पा में हम आया, We came to Mizpah. कभी भी हम एम्प्टी वॉच टावर को देखा नहीं. We never saw an empty watchtower. Always we saw the glory of God. Hallelujah. हमेशा हमने परमेश्वर की महिमा को Always we had watchtower पर देखा. victory whenever we approached Mizpah. और जितनी बार हमने मिस्बा की ओर आए, हमने हमें विजय को परमेश्वर देखा. जीत दिया है. God gave victory to us. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर का बच्चा, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, Children of God, I want to say to you this morning, आपका अच्छा चरवाहा your good shepherd कभी भी आपको धोखा देगा, will never betray you, कभी भी आपको चोट के जाएगा, will never forsake you. घोर अंधकार का तराई में भी आपका संग में चलने वाला है. Even in the valley of the shadow of death, he will walk with you. हालेलुया. Hallelujah. एक खंबा लगा के But when a pillar is placed, Laban, उसका जगह में वापस गया. he returned back to his place. He went back to his place. वो अपने जगह में वापस गया. हालेलुया. Hallelujah. अभी याकूब, Now Jacob, आप समझ लो, when Laban took a left turn, you can imagine that जब लाबान ने दाएं की ओर मुड़ा तो Jacob took a right turn. याकूब ने बाएं की ओर एक करवट ली. Separated. और वे दोनों लोग भिन्न हो गए. Separated. वो दोनों भिन्न हो गए. Totally, completely separated from everything which is of the Laban. हालेलुया. वो पूरी तौर से एक दूसरे से अलग हो गए. जो कुछ भी लाबान They को are taking two ways. उन्होंने दो अलग रास्ते लिए. लाइफ में ये भी हमें सीखना चाहिए. We must learn this in our life. Hallelujah. Hallelujah. We must know where to draw the line of separation in our life. हमें ये जानना जरूरी है कि जीवन में कहां पर वो अलगदाई का एक लाइन हमें That खींचना है. will be the secret of your success. वही आपके सफलता का रहस्य होगा. You must know where to draw the line. आपको ये जानना जरूरी है कहां पर आपको You must वो know where लाइन, to keep the watchtower. आपको वो जानना जरूरी है कहां पर आपको वॉच टावर रखना है. Hallelujah. हालेलुया. याकूब 32 का पहले आयत में क्या लिखा? What is written in Genesis chapter 32 verse 1? याकूब ने भी अपना मार्ग लिया. याकूब ने भी अपना मार्ग लिया. Jacob also went on his way. इसका मतलब क्या है? What does this mean? इसका मतलब ये नहीं है It does not mean याकूब ने that Jacob अपना मर्जी में एक मार्ग चुना. that No. Jacob chose a way according to his own will. हेलो, Hallelujah. याकूब ने अपना मर्जी में मार्ग चुना नहीं. Jacob did not choose a way according to his own will. परमेश्वर 31वां अध्याय का शुरुआत में उनसे कुछ कहा था. God spoke something to Jacob in the beginning of Genesis उसी chapter 31. मार्ग में वो आगे बढ़ा. In that very way Jacob went forward. हेलो, Hallelujah. अगर परमेश्वर पहले ही आपसे बता के दिया मार्ग में अब आगे बढ़ेगा तो If you walk on the way which God has given to you in the you beginning, can see, आप देख पाएगा you will see आपका चरवाहा आगे आगे चल that your shepherd is walking ahead of you. 32 का दूसरा आयत पढ़ लीजिए. Can we read Genesis 32 When verse he 2? take that way, जब याकूब ने उस मार्ग को not लिया, the way which his mind said, वो मार्ग hallelujah, नहीं जो मेरे मन के अनुसार but हो, the way which he got the guidance from God. लेकिन वो मार्ग जो परमेश्वर ने उस अगुवाई दी. परमेश्वर अगुवाई के मार्ग से जब अब उन्होंने चला. When Jacob went on the way which God gave to 32 का him, दूसरा आयत में क्या लिखा है? और the second verse of 32nd chapter says, और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले. उसको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है. देखो, इसीलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा. महनेम रखा. Hallelujah. अब लोग सुनिया है ना, क्या देखा याकूब? What did Jacob see? क्या देखा याकूब? What did Jacob see? The angels of God, परमेश्वर के दूतों को. hostess of the hallel God, hallelujah. वो परमेश्वर के दूतों को. परमेश्वर का सेना को देखा. He saw the army ये of God. याकूब परमेश्वर का सेना को कैसे तुम देख पाया? How did Jacob you see the armies of God? वो कहेगा, He will say, मैं अपना मार्ग में नहीं, not on my way, मेरा इच्छा का मार्ग में नहीं, not according to my will, परमेश्वर ने अगुवाई किया मार्ग में जब मैंने कदम और रखा. but when I put my step in the way which God gave to me. एक क्षण सब लोग खड़ा हो जाइए. Can you all stand on your feet for a लोग moment? आत्मा आपको पूछ रहे, The Spirit of God is क्या asking to प्रभु ने you, अगुवाई दे रहे मार्ग में आप कदम और रखेगा? if you walk according to the way which God has आप given to पराजित you, होने वाला नहीं you है. will never be defeated. हालेलुया. प्रभु ने अगुवाई दे रहे मार्ग में आप कदम और रखेगा. If you walk according to the way which You God will has given to see you, the angels of God. आप परमेश्वर के दूतों को They're देखोगे, walking ahead of you. आपके आगे आगे चलते हुए. And the place got the name Mahanaim. और उस जगह का नाम महानेम करके दिया गया. हेलो. Hallelujah. महनीम करके शब्द का मतलब Mahanaim, the word Mahanaim means hostess of God है ना.
वो परमेश्वर का जो निवास स्थान हो, or camp of God. परमेश्वर का तंबू। So there is an interpretation like this. इसलिए वहां पर एक ऐसा एक इंटरप्रिटेशन है। क्या interpretation है मालूम है? What does it mean? It's not camp, it is camps. वो केवल तंबू नहीं लेकिन तंबुए है। Plural उपयोग किया है। वहां पर दो तंबुए करके इसलिए इस्तेमाल किया ऐसे गया। ऐसे कह रहे। And that is why it is written this way. परमेश्वर का दो झुंड सेना को, एंजल्स को याकूब देखा। Hallelujah. And that is why it is written in this way that Jacob saw two camps of God. एक नहीं दो। Not one but two. तो कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? So how can we interpret अरे it? दो झुंड सेना को देखा। If he saw two camp of armies, इंटरप्रिटेशन ऐसे हो रहे। and the interpretation is Hey this way. Jacob, when you walk towards Hallelujah, you know, Hallelujah ऐसा का, और आप तुम जब खत्म रखेगा तभी। Jacob, when you step forward on the way towards Esau, आपका लेफ्ट साइड में on your left, there is a camp of angels. वहां पर स्वर्गदूतों का एक तंबू है। आपका राइट साइड में और आपके बाएं में there is another camp of angels. एक और स्वर्गदूतों का तंबू है। आपका दाहिने बार On your left, on your left, on your right, on both of your sides, दो झुंड एंजल्स वॉक कर रहे हैं। there are two camps of armies, angel armies who are walking with Can you you. believe that? क्या आप इसे विश्वास कर सकते आपका हैं? लेफ्ट में, आपका राइट में एंजल्स आर वॉकिंग विद On your left and on your right, angels are walking with you. Oh, the camp of angels, स्वर्गदूतों के तंबू, army of angels, स्वर्गदूतों की वो they सेना, are walking both sides of you. वो दोनों तरफ आपके साथ साथ चलते हैं। Hallelujah! Hallelujah! कौन सा रास्ता में चलना है? On which way must we walk? परमेश्वर अगुवाई दे रहे रास्ता में चलना The है। way which God has given to us. आपका चरवाहा आपका आगे आगे जाए। Your shepherd will march ahead of you. आज सुबह किसी व्यक्ति को प्रभु का आत्मा कह This morning the Spirit of God is speaking to somebody. प्रभु का अगुवाई के अनुसार चलो। Walk according to the guidance of अपना God. मर्जी में चलना नहीं है। Do not walk according to your own will. अपना हित के अनुसार चलना नहीं। Do not walk according to your own will. प्रभु यीशु पर नजर लगाओ। Put your eyes on Jesus. उनको पूछो प्रभु अगले कदम मुझे कहाँ रखना। Ask to him, Lord, where must I put my next step forward? Hallelujah. 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 Everybody pray. Marshall Kamana Ragadale. सभी लोग प्रार्थना कर दीजिए। Let us everyone pray together. अगर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार खत्म हो रखेगा तो If you step your ways according to the way of God, आपका चरवाहा आपका आगे आगे चलेगा। your shepherd will march ahead of you. पीछे से आया लाबान को रोक दिया। The one who stopped Laban, who was coming from behind. आगे विरुद्ध में आया ऐसा का गुस्सा को कैंसिल कर Hallelujah. दिया। Hallelujah. He cancelled the anger of Esau who was coming ahead. Hallelujah. Hallelujah. आपको जानते हैं Do you know? 20 साल से Since 20 years, इस गुस्सा को this anger, ऐसा बुझने नहीं दिया। Esau never let this anger subside within himself. 20 years For 20 years, 20 साल, he was keeping the fire inside him. उसने वो गुस्से की आग को अपने अंदर रखा. बुझने नहीं दिया। He never let that fire dwell down. Every day हर दिन he was putting oil inside that fire. वो उस गुस्से की आग में तेल को उमड़ते गया. Every day हर दिन he was waiting for that revenge. इसी का इंतजार कर रहा था, बदले का इंतजार. For 20 long years 20 लंबे वर्ष. वो भूला नहीं, He never forgot. माफ किया नहीं। He never forgave. लेकिन all of a sudden लेकिन अचानक से in a night's time, एक रात के समय में, in a night's time, एक रात के समय में, when Esau was walking towards Jacob's camp, जब एसो याकूब के तंबू की ओर चल रहा था, खत्म आगे देखा, and when he was putting his step forward, something took place in his mind. उसके मन में कुछ हुआ. Oh hallelujah! Hallelujah! क्या हो गया? What happened? आपके आगे आगे गए चरवाहा The shepherd who marched ahead of you, उस आग में पानी डाला, he placed water on that fire. उस आग में पानी डाला। He placed water upon that fire. ऐसा रोना शुरू किया। Esau began to अरे cry. मेरा भाई आ रहे हैं। My brother is 20 coming. साल बाद में मैं उनको मिलने के लिए जा I रहा am हूँ। going to meet my brother after 20 years. ओ भाग के आके आलिंगन किया। And he came and received him. Why? How this took ये place? कैसे हुआ? Because क्योंकि the shepherd is walking ahead of you. क्योंकि वो चरवाहा आपके आगे आगे If your चलता है. shepherd is walking ahead अगर of आपका you, चरवाहा आपके आगे and आगे if you चलता are है, walking according to his plan, और अगर आप उसके इच्छा के अनुसार चलते and हैं, if God pleased on your way, और अगर परमेश्वर आपके चाल चलन से प्रसन्नित है, तो God will परमेश्वर reconcile आपके your enemies with you. आपके शत्रुओं के साथ आपका मेल मिलाप कराएगा. Hallelujah! हालेलुया.
नीति वचन में इसे लिखा है। It is written in Proverbs. क्या लिखा है? What is it written? अगर हालेलुया परमेश्वर आपका मार्ग में प्रसन्न हुआ तो If God is pleased on the way which you are walking, आपका शत्रुओं को आपके साथ में मेल कर देगा। He will reconcile your enemies with you. आपका शत्रु आके कहेगा ब्रदर मैंने गलती की। Hallelujah, hallelujah. Your enemy will come and say to you, brother, I have mistaken. Allow Jesus to walk ahead of you. यीशु मसीह को आपके आगे चलने की अनुमति दे। Just follow Jesus. केवल उसका पीछा करें। Do not follow your own ambitions. आप अपने स्वयं के इच्छाओं का पीछा Do ना not करें। follow your desires. अपने स्वयं के अभिलाषा का You पीछा do ना not करें। follow the passion of the world. अपने दुनिया के उस जुनून का Do पीछा ना not करें। follow Laban. लाबान का पीछा ना करें। Draw a line in between. उनके बीच में एक लकीर बनाए। Make a clear distinction between you and the world. आपके और दुनिया के बीच में एक साफ अलगदाई का लकीर God बनाए। will not allow anything to cross that boundary to attack you. और जब आप वो लकीर बनाएंगे परमेश्वर कोई भी चीज को उस लकीर के पार करने की अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। कितना लोग निर्णय ले लेगा। How many of us can take this decision? वो मैं जानते हैं। Lord, I know मेरा जीवन में काफी जगहों में in many areas of my life मैं वो लाइन बनाया नहीं, I have not drawn that line, इसलिए मेरा जीवन में and that is why in my life लाबान हमेशा मुझे पीछा कर रहे हैं। Laban has always been following me, इसलिए लाबान को हक मिल रहे मेरा टेरिटरी के अंदर प्रवेश करने के लिए। and that is why Laban has been given the authority to enter into my territory. So I want to keep a boundary. इसलिए मैं एक सीमा रखना चाहता हूँ। एक वॉच टावर बन के प्रभु खड़ा रही है। Lord, you become a watchtower and stand ahead of me. कितना लोग इस वचन को स्वीकार How many of us can receive this word? हाथों को स्वर्ग की ओर Can we बढ़ा raise up our hands towards heaven? मेरे गलतियों को क्षमा कर दीजिए। Lord, forgive my mistakes. पिछले दिनों में In the last days, काफी बार मैंने प्रभु आपका इच्छा छोड़ के जिया। many a times I have forsaken your ways. हालेलुया। Hallelujah. आज से नहीं, But not from today. अच्छा चरवाहा को पीछा करने के लिए To follow the good shepherd. मेरा इच्छा का रास्ता वो में नहीं है, Not according to the way of my own desire, मेरा चरवाहा को पीछा करने के लिए but to follow my shepherd. मैं निर्णय ले लो। I want to make this मेरा decision जीवन का बारा में about my life. मेरा चरवाहा ने जो भी निर्णय लिया, Whatever decision my shepherd has taken for me. थैंक यू जीसस। Hallelujah. धन्यवाद हो तेरा हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। शेनाराम थने रेगर शेल्केनी दिल पंदनी रेगर शंदनी हामल पामा शखाना राम धन रगदल खडगर शंदनी। प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। अगर प्रभु का आत्मा इस वचन से आपसे बात किया, If the word of God has spoken to you from this I word, clearly know that this is a personal message for someone who is attending this meeting. मैं स्पष्ट तौर से जानता हूं कि ये किसी के लिए व्यक्तिगत संदेश था, Because you know I was not planning to give this message. क्योंकि मैं ये संदेश को देने का मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं I किया was था। planning to continue the message which I gave on Friday. मैंने जो शुक्रवार को संदेश दिया उसी को मैंने दोहराने का But I मैंने was not सोचा था। having peace in my heart. लेकिन मेरे मन में वो शांति नहीं थी। All of a sudden, clearly, Holy Spirit अचानक से told me पवित्र आत्मा ने स्पष्ट तौर से कहा to speak about getting guidance from God. परमेश्वर के बारे में, अगुवाई के बारे में बताने के लिए कहा। Holy Spirit gave me, hallelujah, that scripture. पवित्र आत्मा ने मुझे वो अध्याय दी, Genesis chapter 32. उत्पत्ति का 32वां अध्याय। याकूब अपना मार्ग में गया। Jacob went on his way. जब उन्होंने अपना मार्ग मतलब On his way means परमेश्वर पहले ही बता के दिया। God gave that way to him beforehand. Hallelujah. Hallelujah. उसका आगे आगे उन्होंने देखा स्वर्गदूतों। And Jacob saw angels ahead of him. मैं इसे कहना I चाहता हूँ। want to say this way. Why it is written, Jacob went on his own way. ऐसा क्यों लिखा है कि याकूब अपने मार्ग पे चला? क्योंकि अभी परमेश्वर का मार्ग Because now God's way उनका मार्ग बना है। is Jacob's way. अभी परमेश्वर का मार्ग Now God's way उनका मार्ग बना है। is Jacob's way. Can you say? क्या आप कह सकते हैं? आपका इच्छा मेरा इच्छा, आपका इच्छा वो मेरा इच्छा बनने आपका पाए, पद्धति मेरा पद्धति,
और आपका पद्धति लॉर्ड, आपका मार्ग मेरा मार्ग, योर वेज ओ मेरा गडरिया, माय शेपर्ड, हो मेरा गडरिया, माय शेपर्ड, आपका मार्ग मेरा मार्ग, योर वेज शिकला माय लमशल, एवरीबॉडी प्रे मजना सभी लोग प्रार्थना ओ कर सकते हैं। यीशु मेरा गडरिया, जीसस इज माय शेपर्ड, ओ यीशु मेरा गडरिया, जीसस इज माय शेपर्ड, मेरा अच्छा गडरिया, My good shepherd. यीशु मेरा गडरिया, Jesus is my shepherd. अभी मुझे मेरा मार्ग नहीं चाहिए, I don't want my ways now. आपका मार्ग मेरा मार्ग, Your ways may be my ways. आपका मार्ग मेरा मार्ग, Your ways may be my माशाल्लाह, ways. ले दे। Hallelujah. Can you pray? क्या प्रार्थना करें? मेरा इच्छाओं को मैं उस बलि का वेदी में अर्पण कर रहा हूँ, I want to sacrifice my ways on the altar, और आपका इच्छा को मैं अपनाना चाहता and I want to adopt your ways. हूँ। हालेलुया। Hallelujah. आपका कदमों का निशाना देके मैं चलना चाहता I want to walk according to the signs of your हूँ। footsteps. हलते लगे Hallelujah. Hallelujah. Everybody praise मजने लगा सभी लोग प्रार्थना करें, आराधना करें। शकारा बांधो रोदी बास ले शेके नारम शकारा देरी बादेरा संदेला मारो शिकारा बांधे ओ मेरा गडरिया, राधा मा शकारा दे मेरा अच्छा गडरिया, मलते लगा My good shepherd शरामांदो रोदी ओ जेलते लगा शरा दे लारा मो शिकारा दे रा तेरा मासो हे नूर बाशके ने दे आंदोलो शकारा देरिया बासा देरो लो जब इस तरफ आया, When he came this way, उन्होंने लूज करके जगह में पहुंचा, he came to a place called Nus, और उस जगह में उन्होंने एंजेलिक विजिटेशन को देखा, and he saw angelic visitation happening at क्योंकि that place चरवाहा आगे आगे चल रहे थे। because the shepherd was So marching he ahead. changed the name of that place into Badel. इसलिए उस जगह का नाम उसने बदल कर This is बैठे the रखा house of God. क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है I am a person dwelling in the house of और God. मैं एक व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के भवन में वास करता अगर हूँ। गडरिया को आप पीछा कर रहे, अगर आप if you are following your you will shepherd, never be an orphan. आप कभी भी अनाथ नहीं होंगे, An orphan. आप अनाथ नहीं You will होंगे, be dwelling in the presence of God. आप परमेश्वर के भवन में वास करेंगे। You will be dwelling in the hallelujah tambu, in the tent of God. हालेलुया, परमेश्वर के तंबू में वास You करेंगे। will be dwelling in the house of God. आप परमेश्वर के भवन में वास करेंगे। हालेलुया। After 20 years, 20 साल के बाद still अभी भी the shepherd is going ahead. वो चरवाहा आगे आगे चलता So है। he reached a place somewhere near Jordan. Hallelujah. यरदन Jordan, के river आसपास। Jordan. यरदन का, oh, I'm sorry, याबूक का तड़क में वो पहुंचा। He came near the valley of याबूक है ना, याबूक का तड़क है। He came near the valley of Yabuk. क्या देखा मालूम है? What is it written? Hallelujah. Again, angel of God. परमेश्वर का दूत। Now the place got a new name. उस जगह को एक नया नाम मिला। Hey, hallelujah. हालेलुया। Mahanim. महानेम, Mahanim. महानेम। God will change your situation. परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलेगा। God will change the fearful atmosphere. परमेश्वर वो भयभीत वातावरण को Now बदलेगा। no more it is loose. अभी वहाँ पर लूस नहीं, That will be a milestone for you. वो आपके लिए एक ऐतिहासिक चिन्ह होगा। Place of your fearful atmosphere. वो जगह जहाँ पर भयभीत वातावरण The था, place where you are spending the entire night with fear. वो जो पूरी रात आपने भय के साथ वो जगह पर That बिताई, same place वही जगह is पर going to get converted into वो बदलने वाला है। the presence of God. परमेश्वर के उस सानिध्य The में house बदलेगा। of God. परमेश्वर के भवन में बदलेगा। Oh, how much Hallelujah. the house of celebration. वो आनंद और उल्लास का जगह बनेगा। Same place. वही जगह It's going to become your Mahanim. वो आपका महानेम Where बनेगा। you see the glory of God. जहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा Where you को see देखेंगे, the Shekinah presence जहाँ of पर God. परमेश्वर के शकीना Where you सानिध्य witness को the देखोगे, face of God. जहाँ पर परमेश्वर के मुख को कभी देखोगे। भी लज्जित न होने वाला है तुम। हालेलुया। तालियां बजाकर। Let us all clap together in praise of God. Sharamando ribarandere, sharamando riaba shakande ribando lo shandere, randolo shakarabandere riaba shakarandelere। अपने होठ को खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करें। शकारांदो लोबो शांदेरे, राधेली बांदोरो शकारांदेरी आबा शांदेरे। चाहे मैं मौत की तरह से गुजरूं परमेश्वर, तो भी तेरा साथ मैं कभी ना छोड़ूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे आगे आगे चलने वाला वो खुदा है। चाहे मेरे शत्रु मेरे पीछे आए परमेश्वर, लेकिन मेरे शत्रु के जगह को देखकर अपने जगह को बदलने वाला वो खुदा मेरे साथ चलता है।
वो खुदा मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से गुजरूं तो भी, चाहे मैं मौत की तरह से गुजरूं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर है जो मेरे लिए आगे आगे चलता है, जो बादल का खंभा बनकर मेरे आगे मेरी अगुवाई को करता है। हालेलुया। शरामोंदे रिबासा कारांदेरे रांदाला मोरांदे रिबासा तेलिबारा रांदोलो शाते लियादारा बासा तेरे। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको, कि तू हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। मेरा शर्वहार वो मेरे आगे आगे चलकर मेरी सुरक्षा करता है। मैं हाथ सारा और मुस्कान दे रे यीशु तेरा नाम रहे, इसलिए हम मिलकर कहेंगे कितना महान है प्रभु, हम सब गाए महान है प्रभु, सबसे महान, सबसे महान है प्रभु, कितना महान है प्रभु,
Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना. आइए समर्पण के साथ में हम प्रार्थना करेगा. आज प्रभु का वचन से प्रभु का आत्मा हमसे बात किया. Everybody pray. Everybody pray. मालका मालका शाखाबान रगदली. प्रभु जी मुझे अगुवाई चाहिए. बिना आपका अगुवाई मुझे एक कदम भी आगे बढ़ने ना दे. Lord, I don't want to move ahead one step without your guidance. Keep my life. मैं अपना जीवन देता हूँ. आपका इच्छा मेरा इच्छा. Your will may be my will. आपका पद्धति मेरा पद्धति. Your plans may be my plans. मैं पूर्ण तौर से मेरा आशा अभिलाषाओं को I want to completely surrender my own ways, my own plans. उस बलि का वेदी में रख रहा हूँ. I want to place it on the altar. और उस जगह में आपका इच्छा को मैं अपना रहा हूँ. And on that altar I want to receive your will. साथ में प्रार्थना Can we करें. pray together?